তথাপিও ধৰক আপোনালোকৰ অলপ খৰচা আছে ন। না না এইটো ঠিকে আছে, কিন্তু মানে আপোনাৰ সন্মানৰ খাতিৰ আপোনাক নহয়। সেইটো বুজি পাইছো, কিন্তু সেইবোৰ নালাগে মোক। আপুনি মোৰ সন্মান যদি কৰিব লাগে চাব, ৰাস্তাৰ অ কামটো ঠিক ভাল, আছে ঠিক আছে কাম একেবাৰে ভাল হ'ব লাগে। ঠিক আছে। পাব্লিকৰ আছে, কাৰণ এইটো আকৌ প্ৰজেক্ট কেতিয়া আহিব? 10 বছৰলৈ নাহে। বেছি নাই। যদি এইটো একবাৰ ভালকে হৈ যায়, পাব্লিক সুবিধা পাই থাকিব। ঠিক আছে। মোৰ খৰচা কোনো নহয় কথাই নহয়, নাই। আমি ঠিকাদাৰ একদম বাৰমাহ কৰো দেই। আৰু এতিয়া মই সদায় কৈ থাকো, মইতো সদায় সদায় কৰো ৰাতি কামবোৰ পেলি ৰাতিয়ে হয়। প্ৰব্লেমটো হৈছে এটা নাই। সেইকাৰণে আমাৰতো চাওঁ মোৰ এছও আছে। মোৰ এটা কাম নাই, চব গোটেই চাব লাগে। 20টামান কাম চলি আছে। প্ৰত্যেকতে মই এঘণ্টা আধা ঘণ্টা মই গৈ চাওঁ। তেনেকুৱা আৰু অফিচৰ কাম থাকে মোৰ বহুত। কাৰণ আমাৰ চিন্তা মানে এইটো 10 নাই বছৰলৈ আৰু নাহিব। নাই, আপোনাৰ একবাৰ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ চিন্তাটো। একবাৰ যিটো নাই হৈ গৈছে সেইটো হৈ গৈছে, আৰু বাৰম্বাৰ নহ'ব। নাই নাই, মই এইখন ঠিকাদাৰ মই বাৰে বাৰে কৰিছো। কিন্তু আপোনাৰ কোনোবা কৈছে নেকি মোৰ নাম লৈ কিনি পইচা বিচাৰিছে নেকি? নাই নাই নাই, কোনো বিচৰা নাই না মোৰ নাম লৈ কিনি। মই আপোনাৰ পৰা কেতিয়া বিচৰা নাই, মই কেতিয়া যোগাযোগ কৰা নাই সেইবোৰ লাইনত। সেইকাৰণে আপুনি পটককে ক'লে কি পইচা পঠাই দিম, মই চিন্তা কৰিলো মইতো কেতিয়া বিচৰা নাই। মই কিবা এটা পঠিয়াম বুলি কৈছো। সেই কিবা এটা দৰকাৰ নাই না, এইবোৰ আপুনি খালি কামটো ভালকে কৰে। ঠিক আছে ঠিক আছে। গেপ চেপ যিমান থাকিব লাগে, ৰদ ফুট ঐ শুনিছা নাই? একদম কিন্তু এইবাৰ যি হ'ল হ'ল। নেক্সট বাৰ হ'লে কিন্তু এনেকুৱা দুবাৰ ৰিপেয়াৰ নকৰো। গোটেই ভাঙি কাম কৰি দিছো এতিয়া। নেক্সট ৰিপেয়াৰ একমাহ কাৰণে পিছুৱাই গ'ল কামটো, হয় নাই? কাম একেবাৰে কৰ না, মই ইহঁতক কৈ দিছো এতিয়া। এইবাৰ কিন্তু কনচিডাৰ নকৰো। বিল চিল নিদিওঁ কিন্তু খঙতে কৈ দিছো। ঠিক আছে, বিল নাপাওঁ কিন্তু কাম কৰি দিওঁ, বিল নাপাওঁ। তাৰমানে নেক্সট আৰু ৰিপেয়াৰ কৰিব নাই দেই, হয় নাই? মই ভালকে বুজাই দিম ছাৰ, মই নিজেও মাজে মাজে আহি থাকিম। ৰিপেয়াৰ নকৰো, ৰিপেয়াৰ কথা নাই নহয়। ৰিপেয়াৰ কৰিব, ৰিপেয়াৰ কৰিলে আমাৰো লছ না ছাৰ। চবৰে লছ। লছ মানে এতিয়া পাবলিকৰ লছ নেকি? আকৌ এতিয়া এমাহৰ কাৰণে মানুহ থব নোৱাৰি। সেইটো মই এতিয়া কৈ দিছো, বেৰিকেড খুলিবই নালাগে, একমাহ পুৰা দিম। একমাহ পুৰা লাগিব, 28 দিন লাগে মিনিমাম। 28 দিন আপুনি সেইটো মানে পানী ব্লক কৰি দিব লাগিব পুৰা এই শান্তি দিবা যাতে গাড়ী থব নোৱাৰে দেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে ডাঙৰীয়া, ভাল লাগিল আপোনাক দেই। আপোনাৰ মোৰ সেইটো ভাল লাগিছে, আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ যিটো হেৰি আছে। কিন্তু আমি একচুৱেলি नमस्ते दर्शकों, मोटो न्यूज की तरफ से मैं ऋषि कलंकी और मैं उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के पर्वतीय अंचल स्थित गोकुल धाम के समक्ष, जहां आज दिन में मैं इस ट्रेन के संबंधित खबर को दिखाने के लिए उपस्थित हुआ था। इसी दौरान मैंने यहाँ पीडब्ल्यूडी रोड के एसडीओ गिरीन सोनवाल से मुलाकात की और इस पूरी घटना में उनका बयान को रिकॉर्ड किया। इसके बाद वे मुझे कोने में आने के लिए कहते हैं, और यहीं से कुछ मीटर की दूरी पर जब मैं उनके साथ जाता हूँ तो वो मुझे एक तरीके से ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आप तक कुछ भिजवाना चाहता हूँ। उनकी इस बात को सुन के मैं दंग रह गया। मुझे समझ में नहीं आया एक सरकारी अधिकारी आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि ये आपके मान सम्मान के लिए इसे गलत मत समझिएगा। जैसे ही मुझे उनका इशारा साफ साफ समझ में आने लगा तो मैंने अपने मोबाइल पे कैमरे पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जिसके बाद मैंने उनसे पूछा, क्या कभी मैंने आपसे पैसा मांगा है या मेरे नाम पर किसी ने आपसे पैसा मांगा? वो कहते हैं कि आपका भी खर्चा होता होगा। जिसके बाद उसकी एक हंसी सुनाई देगी। फिर वो कहते हैं कि ये आपके मान सम्मान के लिए है, ना कि बुझा बुझी के लिए। इस रिकॉर्डिंग को जरा गौर से सुनिएगा। और 111 पर वो कहते हैं, ओए कि बेटा अपना उस वक्त उठाई थी, मतलब मैं आप तक कुछ भिजवा दूंगा। आखिर एक विशेष सरकारी अधिकारी मीडिया को क्यों मैनेज करना चाहते हैं? क्यों? और वो भी तब जब वो पत्रकार उन्हीं के विभाग के अधीन चल रहे एक 8 करोड़ के, लगभग 8 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक के बाद एक विसंगतियां को उजागर करता है और पर्वतीय ड्रीम में करप्शन और स्कैम को एक्सपोज करता है। यहाँ तक कि मोजो न्यूज़ की खबर को देखते हुए तिनसुकिया के जिला उपायुक्त स्वप्निल पॉल ने भी पहले से ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे चुके हैं।
ऐसे में एक शीर्ष सरकारी अधिकारी का एक पत्रकार को मैनेज करने का असफल प्रयास बेहद गंभीर हादसा है। जब सिस्टम में बैठा एक अधिकारी मीडिया को मैनेज करने का प्रयास करे तो वो कई सवाल उठाता है और सरकारी अधिकारी और ठेकेदार के बीच साठगांठ की ओर इशारा करता है। दर्शकों, मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है और हमारा मानना है भारत को मजबूत करने में मीडिया की एक अहम भूमिका है। हम अपना धर्म को पालन करते आए हैं और ये हमारी ही खबरों का असर है कि आज इस ड्रेन में सरकार कार्रवाई करने के मजबूर हो गई है। ऐसे में एक मैजिस्ट्रेट जांच के दौरान विभाग के शीर्ष अधिकारी द्वारा मुझे कुछ भिजवाने की बात ये कहना कि आपका भी कुछ खर्चा होगा और ये आपके मान सम्मान के लिए है, ना कि आपको मिलाने के लिए, बहुत संगीन बात है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिस्टम में बैठा अधिकारी ही खुद अगर मीडिया को मैनेज करने लग जाए तो हमारे राज्य का या हो रहे विकास के कार्यों का क्या होगा। मोजो न्यूज़ की तरफ से मैं ऋषभ कलंत्री। देखते रहिए मोजो न्यूज़।